السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق علم التجوید کورس کے سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، مجھے امید ہے کہ اب تک ہم جتنے بھی اسباق پڑھ آئے ہیں آپ کو الحمدللہ وہ سب سمجھ میں آ چکے ہیں اور پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو آ گیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے را کو موٹا یا باریک پڑھنے کے قاعدے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ہم موٹے حروف پڑھتے ہیں جنہیں ہم نے حروف مستعلیہ کہا تھا، اس میں را شامل نہیں تھی، جبکہ ہم را کو کبھی موٹا بھی پڑھتے ہیں تو حروف مستعلیہ میں شامل نہیں ہے، لیکن را کو کبھی ہم موٹا بھی پڑھتے ہیں اور کبھی باریک بھی پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم یہی سیکھیں گے کس وقت را کو موٹا پڑھنا ہے اور کس وقت باریک پڑھنا ہے۔ وہ قاعدہ نمبر 1 ہے، جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا ادا کریں گے۔ جیسے مثالیں آپ کے سامنے ہیں، را پر زبر ہے تو رو، را زبر رو، رزقناہم، رزقناہم۔ اب را پر پیش ہے تو روزقو، روزقو، ٹھیک ہے۔ پھر جب را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے رجالن۔ اب ہم اس کو رجالن نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، باریک ہی رکھیں گے، ری، رجالن۔ اب موٹی را کی مشق، را، را، را۔ را میں تھوڑی سی تقریر ہوتی ہے، یعنی را کی آواز اپنے مخرج میں پلٹتی ہے، را، بس تھوڑی سی، زیادہ نہیں کرنی۔ پھر پیش کے ساتھ رو، 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 رو۔ پھر باریک را کی مشق، ری، ٹھیک ہے، ری، 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 رجالن، رجالن، رجالن۔ سمجھ آئی؟ یہ ہمارے پاس قاعدہ نمبر 1 را کو موٹا یا باریک پڑھنے کا تھا۔ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو را کو موٹا پڑھیں گے، لیکن را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ مزید کلمات کے درمیان میں جب را آتی ہے تو تب را کی اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے، جس را پر زبر یا پیش ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، جس را کے نیچے زیر ہے اسے باریک پڑھیں گے۔ را، اب یہاں را پر زبر ہے نا، را او، ٹھیک ہے، را او، میران، ظاہرا، ومبشرا، ونذيرا، والخيرات، والراشدون، كلما رزقوا۔ اب دیکھیں را پر پیش ہے نا تو اس کو موٹا پڑھیں گے، كلما رزقوا، والركع السجود، وعشرون، صابرون، لا يفلح الكافرون، رجال، رئاء الناس، والصابرين، وفي الرقاب،
वलगारिमीन, ठीक है। रॉ मुशद्दद भी हो तो भी हम यही देखेंगे, रॉ पर जबर या पेश है तो मोटी पढ़ेंगे, रॉ मुशद्दद पर जेर है तो बारीक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कायदा नंबर 2, जब रॉ साकिन हो, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने अपने असबाक पढ़े थे, कायदे से हमने प्रैक्टिस की थी ना, तो ये चीजें मैंने आपको साथ साथ भी बताई थी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक समझने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। रॉ का दूसरा कायदा क्या है हमारे पास, जब रॉ साकिन हो, साकिन कब होती है रॉ, कोई भी हर्फ तब साकिन होता है जब उसके ऊपर जज्म आ जाए। जज्म की शक्ल कैसी होती है, दाल जैसी, जैसे ये बर्क उनके ऊपर है, ये देखिए ये जज्म है, ठीक है। तो जज्म की वजह से रॉ है साकिन, तो जब रॉ साकिन हो और उससे पहले जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, जैसे बर, बरकुन। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है, जब हम रॉ को मोटा पढ़ें तो रॉ से पहले वाला लफ्ज मोटा नहीं होना चाहिए। अमूमन हम रॉ को मोटा करते करते उससे पहला भी मोटा पढ़ देते हैं, जैसे बर, बरकुन, तो ये गलत हो जाएगा। बरकुन, युर, युरज़क़ून। इसी तरह जब रॉ साकिन हो, ठीक है, और उससे पहले जेर हो तो रा बारीक होगी, जैसे मिर, मिर फिर अब मोटी रा की मश्क, कौन सी रा, जिस जो जज्म वाली रा है और उससे पहले जबर या पेश है तो। और अब इसको और यूं नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, हमजा की आवाज बारीक ही रखेंगे। और 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 उर 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 और उर और उर और, और उर ठीक है। फिर बारीक रा, और यानी उर रा साकिन, उससे पहले जेर तो रा को बारीक रखेंगे। इर, 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 फिर मिर यतुन, मिर मिर या यतुन, मिर मिर या यतुन, ठीक है। अब कलिमात दिए हैं उन्होंने आपको, ठीक है, यानी हमारे सबक में कलिमात हैं, कलिमात में रॉ साकिन। फिर अब हम ध्यान रखेंगे, अगर रॉ साकिन से पहले जबर ये पेश आ रही है तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, अगर इन कलिमात में रॉ साकिन से पहले जेर है तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, जैसे ला तरफऊ, यरज़ौनहु, नुरसिलुल मुरसलीन, वअमुर अहलक इस्तगफिर। अब यहाँ रॉ साकिन से पहले जेर है तो इस रा को हमने बारीक पढ़ा, इस्तगफिर। फिर है कायदा नंबर 3, रा पर ठहरते वक्त अगर उससे पहले हर्फ साकिन हो, क्या मतलब, रा पर ठहरने से क्या मुराद है, मुराद ये है कि जब रा साकिन हो और रा साकिन से पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, आसान लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं रा साकिन मा कबल साकिन, यानी रा साकिन है और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश हो तो रा को मोटा अदा करेंगे, जैसे ये मिसाल है ना वल आस्र, इसमें जब हम वक्फ करते हैं तो रा को साकिन करेंगे ना, यानी जब हम इस रा पर ठहरते हैं, यानी जिस रा को हम वक्फन साकिन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वक्फ करेंगे तो रॉ साकिन से पहले भी साकिन, उससे पहले जबर, तो जब रॉ साकिन हो, उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो, उससे पहले जबर हो, तो हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ भी हम वक्फ करते हैं, तो यहाँ रॉ साकिन, उससे पहले वाला हर्फ साकिन, उससे पहले पेश, तो भी रॉ को मोटा पढ़ेंगे। ये है ना इन्नल इंसान लफी खुस्र, वक्फ करते हैं ना यहाँ पर, इसको कैसे पढ़ेंगे, रॉ साकिन मा कबल साकिन, मा कबल मफतूह या फतहा,
यानी आपकी आपके सानिशार इसी में हो, रा साकिन, उससे पहले वाला हर्फ साकिन और उससे पहले जबर है, तो हम रा को मोटा पढ़ेंगे, जैसे वल असर। इसी तरह रा साकिन, उससे पहले वाला हर्फ साकिन, उससे पहले पेश, तो रा को मोटा, खुस्र, खुस्र। वरना तो वल असरी, रा जेर है तो बारीक, खुसरिन जेर है तो बारीक। लेकिन जब हम यहाँ रा पर ठहरते हैं, वक्फ करते हैं, तो रा साकिन हो जाती है ना ठहरने की सूरत में। इसलिए यहाँ ये बताया जा रहा है, जब रा साकिन हो, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, उससे पहले जबर हो या पेश हो, तो रा को मोटा अदा करते हैं। इसी तरह जब रा साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले जेर हो, ठीक है, या रा साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ साकिन है, यानी रा साकिन और उससे पहले या साकिन आ जाए, तब हम रा को बारीक पढ़ेंगे। कब? जब रा साकिन हो, ठीक है, रा साकिन हो, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले जेर हो, तो रा को बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह रा साकिन हो, रा साकिन से पहले या साकिन हो और उससे पहले जबर हो। अब देखें, जब या साकिन से पहले जबर होती है, वो कौन सी या होती है? हमने हरूफे मद्दा हरूफे लीन पढ़े थे ना। तो जब या साकिन से पहले जबर होती है ना, वो कहते हैं या लीन। तो यहाँ हम आसानी से इस तरह भी समझ सकते हैं, जब रॉ साकिन हो और उससे पहले या लीन आ जाए, तो उस रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। कैसे? रॉ साकिन, उससे पहले वाला हर्फ साकिन, उससे पहले जेर है, तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह अगर रॉ साकिन है और उससे पहले या लीन आ जाए, तो हम रॉ को बारीक ही पढ़ेंगे। हमने पिछले कायदे में पढ़ा था ना, रा साकिन हो, उससे पहले साकिन हो, उससे पहले जबर हो, तो मोटा पढ़ेंगे। लेकिन इसमें फर्क है, अगर रा साकिन है, उससे पहले या साकिन आ रही है और उससे पहले जबर है, तो फिर हम उस रा को बारीक पढ़ेंगे। इसलिए मैं थोड़ा आपकी आसानी के लिए कह रही हूँ। अगर आपको ऐसे ज्यादा समझ आ जाए तो ये ज्यादा अच्छी बात है कि रा साकिन, उससे पहले या लीन हो, तो उस रा को हम बारीक पढ़ेंगे। जैसे ये मिसाल है, हिज्र, 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 रा साकिन, मा कबल साकिन, मा कबल जेर। रा साकिन, उससे पहले वाला हर्फ साकिन, उससे पहले जेर है, तो हम इस रा को बारीक पढ़ेंगे, हिज्र, हिज्र। ठीक है। फिर रा साकिन, रा साकिन से पहले या साकिन, उससे पहले जेर, ऐसे ही है। ये देखें, रा साकिन से पहले या साकिन, रा साकिन, उससे पहले या साकिन और उससे पहले जबर हो। अब या साकिन से पहले जबर है, तो अब या साकिन से पहले जबर होती है, तो वो या लीन है। ठीक है। रा साकिन, रा साकिन से पहले या लीन आ जाए, तो उस रा को हम बारीक पढ़ेंगे। खैर, खैर। ठीक है। अब हम इन कलिमात में रा साकिन का ख्याल करेंगे कि जिस रा साकिन से पहले वाला हर्फ साकिन हो, उससे पहले जबर या पेश हो, रा को मोटा पढ़ेंगे। लेकिन अगर रा साकिन है, उससे पहले भी साकिन और उससे पहले जेर है, तो रा को बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह रा साकिन, उससे पहले या लीन, या फिर रा साकिन, उससे पहले या साकिन और उससे पहले जबर हो, तो हम रा को बारीक पढ़ेंगे। समझ आ रही है इस बात की? चलें पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ वक्फ करना है, यानी रा पर ठहरना है, तो रा साकिन हो जाएगी। उससे पहले भी हर्फ साकिन है, उससे पहले जबर है, हम इस रा को मोटा पढ़ेंगे। वल फजर, वल फजर। फिर वलयालिन आशु, आशु।
والشفع والوتر ذات قرار. را साकिन है ना. अब را साकिन से पहले अलिफ मद्दा आ रहा है, तो यहाँ भी हम रा को मोटा ही पढ़ेंगे. करार. ठीक है. किताबल अबरारी. लेकिन अगर हमने ठहरना है हम ठहरेंगे यहाँ पे. ठीक है. किताबल अबरार. उक़बद्दार. अब यहाँ पर जब हमने ठहरना है इस रा पर, तो हम देखेंगे रा साकिन, उससे पहले साकिन, उससे पहले जेर, तो इस रा को हम बारीक पढ़ेंगे. फिर कैसे पढ़ेंगे? हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र. मुझे याद आया, बहुत बचपन में जब मदरसे में नाजरा पढ़ा करते थे ना, तब वहाँ कारी साहब आए थे इम्तहान लेने. सालाना इम्तहान था. जब मेरी बारी आई, उन्होंने मुझसे 30वीं पारे से ना सिर्फ यही वाली आयत सुनी थी, वल फज्र व लयालिन अश्र व शफ़इ वल बद्र. जब मैंने पढ़ा तो मैं खामोश हुई, तो उन्होंने ना मेरे पढ़ने के बाद उन्होंने खुद भी ये आयत ऐसे ही दोहरा दी. तो मैं तो घर आके इतना रोई, मैंने कहा मेरा तो सारा गलत हो गया. सारा कारी साहब ने मुझे खुद पढ़ के बताया कि ये ऐसे पढ़ना है, हालांकि उन्होंने मुझे ये कहा नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ा, बाद में उन्होंने भी खुद पढ़ दिया. बच्ची थी मैं घर आके बहुत रोई. इतने दिन बाद रिजल्ट आया, मैं रोती रही. मैंने कहा मैंने मदरसे नहीं जाना, मुझे नहीं पढ़ना आता. कारी साहब ने सारा मुझे पढ़ के बता दिया, इसका मतलब मेरा सारा गलत हो गया. फिर जब रिजल्ट आया तो माशाल्लाह तब वहाँ काफी ज्यादा बच्चे होते थे, तो कोई 100 के करीब होंगे बच्चे. आजकल के हिसाब से आजकल तो बस कोई हालात नहीं है. तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मेरी क्लास में मेरे मैं फर्स्ट पे आई थी, दूसरा पूरे मदरसे में मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे. अभी मुझे याद आता है तो मैं कहती हूँ अच्छा ऐसे था. चलें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए. तो मुझे उम्मीद है कि आपको सबक की समझ आ रही है. ठीक है. अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां से नहीं समझ आए आप फिर से पूछिएगा. हाँ. अब ये चंद अल्फाज हैं, ठीक है, जहां पर रॉ मोटी होगी. हालांकि यहाँ पर देखिए रा साकिन है ना, लेकिन पीछे जेर है. रॉ साकिन है, जेर है. रॉ साकिन है, जेर है. रॉ साकिन है, जेर है ना. फिर ये रॉ क्यों मोटी होगी? इसलिए कि जब रॉ साकिन से पहले जेर हो और उसके बाद मोटे हरूफ आ जाए, तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे. रॉ साकिन से पहले जेर और रॉ साकिन के बाद मोटे हरूफ में से आ जाए कोई हर, तो वहां रॉ को मोटा पढ़ेंगे. जैसे कैर. ठीक है. कैर तौसुन, मिरसादुन, इरसादुन, फिरकतुन. अब हम इसकी मश्क करते हैं, ताकि हमें रा साकिन से पहले जेर और उससे पहले और उसके बाद मोटा हर्फ है, तो वहां पर हमें रा को मोटा करना है. क़िरतासुन. 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 मिरसादुन. 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 इसी तरह इरसादुन. 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 फिरकतुन. 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 ठीक. फिर उसके बाद ये जो फिरकतुन है, इसमें फिरकिन की रा, और इसी तरह अल क़ित्र और मिस्र, इसकी रा पर जब ठहरा जाए तो रा को मोटा या बारीक दोनों तरह पढ़ना सही है. मतलब ये चंद मखसूस अल्फाज हैं, फिरक, इसी तरह क़ित्र और मिस्र. जब यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तो हम इसको मोटा भी पढ़ सकते हैं और बारीक भी, इसमें कोई हर्ज नहीं है. अगर हम इसको मोटा पढ़ना चाहें तो उसके साथ हम मश्क करते हैं इन अल्फाज की. रा पर जब हम ठहरे तो इसको हम बारीक भी पढ़ सकते हैं, मोटा भी. पहले हम मोटे की मश्क करके देख लेते हैं. फिरकिन. फिरकिन.
फिरकिन, ये तो हमारा ये है ना जो हमने पीछे पढ़ा कि रा साकिन से पहले जेर है और आखिर में उसके बाद मोटा हर्फ आ जाए तो उसको हम मोटा पढ़ते हैं। तो बस उन्होंने बताया है कि जो कित्र और मिस्र है इसकी रा को भी हम इस तरह से मोटा पढ़ सकते हैं जब हम यहाँ वक्फ करते हैं, क्योंकि यहाँ वक्फ की सूरत में रा साकिन है ना, माँ कबल साकिन है और उससे पहले जेर है। इस सूरत में रा को बारीकी पढ़ना होता है ना, लेकिन ये मखसूस अल्फाज हैं जहां हम मोटा भी पढ़ सकते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? अल क़ित्र, अल क़ित्र, अल क़ित्र, मिस्र, मिस्र, मिस्र। फिर बारीक पढ़ना हो तो फिरकिन, फिरकिन, फिरकिन। फिर अल क़ित्री, सॉरी वक्फ करना है ना, अल क़ित्र, अल क़ित्र, अल क़ित्र, मिस्र, मिस्र, मिस्र। ठीक है, बस आपने मखारिज को कंट्रोल में रखना है तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। फिर मजीद इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फकान कुल्लु फिरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। एक बार हम इसको मोटा पढ़ लेते हैं, एक बार बारीक, ठीक है? दोबारा से पढ़ लेते हैं। फकान कुल्लु फिर, ठीक है, फकान कुल्लु फिरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। अब हम एक बार इसको बारीक पढ़ लेते हैं। फकान कुल्लु फिरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। दोबारा से पढ़ लेती हूँ। फकान कुल्लु फिर, फकान कुल्लु फिरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। फिर यहाँ पर क़ित्र के अल्फाज आ रहे हैं, ठीक है। वअसलना लहू ऐनल क़ित्र, वअसलना लहू ऐनल क़ित्र। बारीक, मोटा और बारीक। फिर नीचे मिस्र है। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र, वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र। सही। अब आखिरी कायदा रॉ का, ये थोड़ा समझने वाला है। जज्म वाली रा से पहले जेर हमजा वसली पर हो या जज्म वाली रा से पहले जेर दूसरे कलिमा में हो तो इन दोनों सूरतों में रा को मोटा ही पढ़ेंगे। क्या कायदा है? रा साकिन है, ठीक है, जज्म वाली रा, क्या मतलब? रा साकिन, रा साकिन से पहले हमजा वस्ल उस पर जेर हो, यानी रा साकिन हो और उससे पहले हमजा वस्ल हो जिस पर जेर हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह रा साकिन हो और उससे पहले जेर दूसरे कलिमा में हो तो इस सूरत में भी रा को मोटा ही पढ़ेंगे। मिसाल से देख लेते हैं, ज्यादा समझ आ जाएगी। ठीक, यहां पर देखें। अब पहला कायदा क्या है इसका? रा साकिन और उससे पहले जेर हमजे वसली पर हो। जैसे ये है, हमजे वसली से मुराद ये होता है कि ऐसा हमजा अगर दो कलिमात मिल रहे हों, दो कलिमात के दरमियान में वो हमजा आ जाए तो वो पढ़ने में नहीं आता, हज़्फ हो जाता है। ठीक है, दो कलिमात को मिलाने का काम करता है। अब रा साकिन है और उससे पहले जेर आ रही है हमजे वसली पर। ये जो हमजा है ना, ये जेर है इसके नीचे, ठीक है, ये हमजा वसली है। क्योंकि अगर हम इसके पीछे वाऊ लगा देना तो ये हमजा पढ़ने में नहीं आएगा, फिर हम इसको पढ़ेंगे वरु, वरु जी, ठीक है। रा साकिन हो और उससे पहले जेर हमजे वसली पर हो तो हम रा को मोटा अदा करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे इसको? इरो, इरजिउ। इसी तरह इरहम, इसी तरह इरु तब तुम। फिर दूसरी बार हमने क्या पढ़ा? रा साकिन हो, जस्म वाली रा यानी रा साकिन, और फिर रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलिमा में हो। जैसे यहां पर देखिए, ये दो कलिमात है ना, एक है रब्बी और एक है इरजिऊन, ठीक।
अब यहाँ पर क्या है, ये रा साकिन है, ठीक है। रा साकिन, उससे पहले जेर है, उससे पहले बा है ना, बा पर जेर है। ये चूंकि दो कलिमात हैं, रा साकिन, रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलिमे में आ रही है, ठीक। तो यहाँ भी रा को हम मोटा ही अदा करेंगे। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? रब्बिर, रब्बिरजिऊन। इसी तरह इनिर तब तुम, अमिर तबू। क्या कायदा है ये? रॉ साकिन हो, उससे पहले जेर हमजा वसली पर हो, तो रॉ को मोटा अदा करते हैं। इसी तरह रॉ साकिन हो, रॉ साकिन से पहले जेर दूसरे कलिमा में हो, तो उस रॉ को भी मोटा अदा करना है। दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। इरजिऊ, इरहम, इरतबतुम, रब्बिरजिऊन, इन इरतबतुम, अमिरताबू। ठीक है। मतलब ज्यादातर सबक वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ, इससे आप परेशान ना हो, ठीक है। बस ये एक दो कवायद हैं जो आपके लिए शायद नए होंगे, बाकी तो आपने सारा पीछे समझा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है। इसलिए मैंने आपको ये सारा पढ़ा दिया, क्योंकि थोड़ा ही इसमें वो है जो आपके लिए नया है, उस पर ही तो मेहनत करनी है ना। जो सीखा हुआ पहले से, जिसकी समझ है, उस पर तो आपको आज मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है मेहनत वाला काम थोड़ा ही है, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं इंशाअल्लाह, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सबक की समझ आ गई है। तो हम यहाँ से ऑफ करके आपसे सवालात ले लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।